Bismillahirrahmanirrahim. So our today topic for discussion is classification of lubricants. So classification of lubricant is made on the basis of three parameters: on the basis of raw material, on the basis of their usage, and on the basis of viscosity. So classification by raw materials or substances. So lubricants basically they are in three forms: in the liquid form, semi-solid form, and pure solid form. So liquid oils, these are further classified: petroleum oils, and then mineral oils, vegetable and animal oils, synthetic oils. So petroleum oils, these are crude oil, raw oil. So from petroleum oil, mineral oils are produced through certain processes, and further these mineral oils, these are classified as pure mineral oil, or by using additives, these are produced as blends. They are blends, means combination of base oil plus additive. These are called blends of mineral oil. And vegetable and animal oils, these are called fatty oils. So because these are produced from fats of animals. Synthetic oils, so these are also produced from petroleum oils or lubricating oils. These are also produced from crude oil through certain processes. These are chemically modified oils, just like polyalpha olefins, alkyl benzene, phosphoric acid ester, polyglycols. And semi-solid lubricants, just like grease. Solid lubricants, just like molybdenum disulfide, lead oxide, graphite. So this shows the graphite and this lubricant, grease, and this liquid oil, just like synthetic oil or mineral oil. So solid form, semi-solid form, and this liquid form. So solid lubricants. So solid lubricants are those materials which are used as thin film or powder on surfaces to provide protection from damage during relative movement and to reduce friction and wear. So basically, the main function of lubricant is to reduce friction and wear. Hence, solid lubricants does. So solid lubricants, just like graphite, molybdenum disulfide particles, are common solid lubricants. So these two types of solid lubricants are generally used in the lubricant. Also other lubricants, solid lubricants, just like boron nitride, tungsten disulfide, and polytetrafluoroethylene are also, these are used for different purposes. Solid lubricants, these are also used as additives to different liquid oils in order to form blends, just like in this pure mineral oils plus additives. Here solid lubricants can be used. So basically these are solid lubricants are used as additives to form required blends. Solid lubricants, in addition to their additives, they are used as additives also. They are also used as coatings, dry powder or surface coatings. They are also used for dry powder or surface coatings. Example, the bonding of these lubricants on the surfaces of various machine components. Various machine components such as cylinder liners and piston skirts in the large stationary gas turbines. सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो ये हैं, ये इनके दो काम है, या तो वो एज एडिटिव, एडिटिव्स में लुब्रिकेंट्स ऑयल्स में यूज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनको मॉडिफाई करने के लिए, या फिर वो कोटिंग्स के लिए, जस्ट लाइक पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन है, पिस्टन स्कर्ट्स मतलब जो पिस्टन वॉल है, या फिर सिलेंडर लाइनर्स जो सिलेंडर का इंटरनल पॉट है, ये देखें सिलेंडर लाइनर, ये क्या है, ये इंटरनल, ये सिलेंडर जो है उसका इंटरनल पॉट,
जहाँ पे ये पिस्टन और सिलेंडर का ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो ये होता है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर ये बेसिकली ये बना होता है ग्रेफाइट का, ये सारे लुब्रिकेंट्स का बना होता है, ये कोटेड है, ये फिल्म है, एक कोटिंग है इसकी। क्यों कोटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो आपको पता है ये सिलेंडर, इसका मोशन, जो ये पिस्टन है इसका स्लाइडिंग मोशन है, तो स्लाइडिंग मोशन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन और अल्टीमेट वियर एंड टियर एंड हीट जनरेशन होगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये सिलेंडर लाइनर, इसकी कोटिंग होती है सॉलिड लुब्रिकेंट्स की, वो कोटिंग करते हैं, उसी वजह से उसमें जो है वो जो हीट जनरेशन है वो हीट ट्रांसफर होती है, प्रॉपर हीट ट्रांसफर होती, और फ्रिक्शन भी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती, वियर टियर इतनी नहीं होती। तो ये सिलेंडर लाइनर में भी यूज हो सकता है, या इसमें ये जो पिस्टन इसका, जिसको हम ये पिस्टन वॉल है, ये पिस्टन वॉल, ये इसमें भी यूज होता है। पिस्टन जो वॉल है इसकी भी कंप्लीट कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये पिस्टन डायरेक्ट कांटेक्ट में सिलेंडर लाइनर से, तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मूवमेंट होगी, रिलेटिव मूवमेंट, तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन वियर एंड टियर होगी, तो अल्टीमेटली उसकी हीट भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा इंजन का, सिलेंडर का। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा इंजन पे, उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, उसकी ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया ये? Okay जी, mineral oil. Now liquid oils, mineral oils are derived from the refining of crude petroleum oil. So mineral oils, these are produced from raw oil or crude oils, crude petroleum oils. So during the process, natural contaminants and unwanted hydrocarbons are removed. Natural contaminants, just like waxes, these are separated through the process, and these are refined. Mineral oils, these are at low cost as compared to synthetic oils. Mineral-based oils flow through the engine circuit more slowly because of their molecular arrangement and non-uniform molecular size. They flow slowly as compared to synthetic oil. So due to this, there is an increase in fuel consumption because of low fluidity of mineral oil. Fuel consumption is increased, and which ultimately affect the performance of vehicle or engine. So the changing frequency of the mineral oil is more as compared to synthetic oil. मतलब mineral oils उसकी हम अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसकी चेंजिंग हम वो जल्दी चेंज करेंगे एज कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल। तो जो सिंथेटिक ऑयल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी लाइफ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा देर तक वो यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल्स। So drop off conventional oil under a microscope shows millions of molecules, all with the different shapes, sizes, and structures. You can see in this picture, this drop under a microscope. This shows the synthetic oils where molecules are arranged in a uniform manner and their size is also equal. And this synthetic oil versus this mineral oil, you can see the molecules are not in equal size and not in evenly spaced. So here you can see space is more as compared to this location. ये देखें आप, इसमें जो एक तो साइज मॉलिक्यूल्स की वो चेंज है, वेरी कर रही है, और उसके अलावा ये देखें आप इनका स्पेस वो भी इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से अल्टीमेटली इसकी जो कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी अगर ये मिनरल ऑयल यूज़ करेंगे। मतलब इसमें जो है इंटर मालिकुलर जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वजह से इसमें वेरिएशंस होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसमें ब्रेकिंग डाउन जल्दी होगा, इसका ब्रेक डाउन जल्दी होगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। एक्सट्रीम कंडीशंस में इसका ब्रेक डाउन जल्दी होगा, स्लो कंडीशंस में, लो कंडीशंस में, जस्ट लाइक कोल्ड में भी इसकी फ्लोएबिलिटी बिल्कुल कम होगी,
और हार्ड कंडीशंस में इसका जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अल्टीमेटली इसकी जो चेंजिंग आयल है, चेंजिंग आयल फ्रीक्वेंसी वो जल्दी होगी, मतलब जल्दी हमें ये चेंज करना पड़ेगा अगर ये मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और कंपेरेटिवली ये देखें आप सिंथेटिक ऑयल, इसकी फ्लेवेबिलिटी बेहतर होगी क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स देखें बिल्कुल इक्वल इन साइज है, साइज उनकी बिल्कुल सेम है और दे आर इवनली स्पेस्ड, स्पेस उनके बीच में वो भी सेम ही है। तो इसकी जो फ्लेवेबिलिटी वो बेहतर होगी एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। फर्दर सिंथेटिक ऑयल्स these are produced through chemical transformations that are performed either directly on crude petroleum extracted by drilling or using pre-selected molecules। तो सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल दोनों का जो रॉ सब्सटेंस सेम ही है। मिनरल ऑयल वो भी क्रूड ऑयल से जनरेट होता है और सिंथेटिक ऑयल वो भी क्रूड ऑयल से, मगर जो इसको सिंथेटिक ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए उस क्रूड ऑयल को फर्दर हम ट्रीट करते हैं थ्रू केमिकल प्लांट। उसमें हम ये जो एक्सटर्नल एडिटिव्स जैसे इथाइलिन गैस वो यूज़ करते हैं इसको केमिकली मॉडिफाइड करने के लिए, तभी ये प्रोड्यूस होता है। जैसे ये देखें ग्राफ में आगे चलकर हम देखेंगे, ये देखें ये मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल्स दोनों का रॉ मटेरियल देखें सेम ही है, इनपुट जो सेम ही है, क्रूड ऑयल सेम क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल इसको पास करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम फॉर रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन कॉलम से ये पास होता है, उसके बाद इस लिक्विड ऑयल को फर्दर ट्रीट करते हैं केमिकल प्लांट से और इथाइलिन गैस से यूज़ करते हैं। तो ये जनरेट होता है सिंथेटिक ऑयल, केमिकली मॉडिफाइड ऑयल। क्रूड ऑयल सेम ही देखिए, इसको डिस्टिलेशन कॉलम फर्दर उसमें से वेक्स रिमूव करते हैं, वेक्स मटेरियल होता है वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन हैं सारे। तो फर्दर रिफाइंड मिनरल ऑयल। So we can say synthetic oils, these are artificially made chemical compounds. So these compounds are made by breaking down and then rebuilding petroleum molecules. So under microscope you can see the molecules of this synthetic oil which are evenly spaced and are equal in length. So synthetic oils contain fewer impurities as compared to mineral oils. Why? Because synthetic oils are chemically modified. They are passed through the chemical plant. So they are chemically modified. Hence, they contain fewer impurities as compared to mineral oil. The same you can see synthetic oil under microscope. ये देखिए इक्वल इन साइज, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल इन साइज है। तो आप कह सकते हैं सिंथेटिक ऑयल्स उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। एडवांटेजेस, सिंथेटिक ऑयल सेव एक्सीलेंट फ्लो एट लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स पे भी उनकी फ्लूइडिटी बेहतर है एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। स्टेबल विस्कोसिटी इवन एट हाई टेम्परेचर, विस्कोसिटी उसकी बिल्कुल स्टेबल है, ज़्यादा टेम्परेचर्स पे भी, हाई टेम्परेचर्स पे उसकी विस्कोसिटी जल्दी चेंज नहीं होती। अगर विस्कोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसकी फ्रिक्शन वो भी कम, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी, मतलब वो कम मेंटेन करेगा हीट को, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी या उसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज होती जाएगी, उसकी जो कैपेसिटी वो कम होती जाएगी। लेस फ्रीक्वेंट ऑयल चेंजेस, ये भी हमने डिस्कस किया कि लेस फ्रीक्वेंट ऑयल चेंजेस क्यों, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक हम चला सकते हैं ऑयल को। लेस डिपॉजिट फॉर्मेशन, वाई? बिकॉज दीज आर केमिकली मॉडिफाइड, उसमें डिपॉजिट कम होंगे और उनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, फ्लूइडिटी ज़्यादा है। लेस वियर ऑन पार्ट्स, ऑप्टिमाइज फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन कम होगी उसमें से इंजन से एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। प्रोटेक्ट इंजन एंड इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन, हेंस अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन। तो सिंथेटिक ऑयल्स वर्सेस मिनरल ऑयल्स, ये आप देख सकते हैं सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल
कि इससे उनकी प्रोडक्शन होती है। ये सेम ही है, देखें क्रूड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल वो सेम ही है, उनका जो रॉ सब्सटेंस है वो सेम है। डिफरेंस क्या है? केमिकल कंपोजिशन और देयर प्रोसेस स्टेजेस। ये देखें, ये इनकी स्टेज सेम है, डिस्टिलेशन कॉलम, और ये जो है फर्दर लिक्विड है, लिक्विड ऑयल, इसको फर्दर ट्रीट करते हैं थ्रू केमिकल प्लांट बाय यूजिंग इथाइलिन गैस एंड सिंथेटिक ऑयल इज प्रोड्यूस, which we can say this is chemically modified oil, which is better performance, better properties is compared to mineral oil. Mineral oil, ये देखिए सेम कॉलम है, डिस्टिलेशन का कॉलम, देन वेक्स रिमूवल एंड हेंस रिफाइंड मिनरल ऑयल। ये देखिए इसकी केमिकल कंपोजिशन इन केस ऑफ सिंथेटिक ऑयल, molecules are in equal length and they are in a uniform manner, hence internal friction is low। जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल फ्रिक्शन है वो लो है, स्मूथनेस है। और इसमें देखें आप मिनरल ऑयल्स में, इसमें अनइवन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स की, और इनकी साइज भी वेरी कर रही है, हर मॉलिक्यूल की अलग साइज है, इसी वजह से इसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। और इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन इसकी जल्दी होगी, ब्रेक डाउन इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होंगी एज कम्पेयर टू दिस सिंथेटिक ऑयल। और उसी वजह से इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस में, मतलब लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, उसकी हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन होगी। ये सेम ही है, ये देखें, ये मिनरल ऑयल, सॉरी सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल। ये क्लियर हो गया, सिंथेटिक ऑयल वर्सेस मिनरल ऑयल। एनी क्वेश्चन? Further comparison between mineral oil and synthetic oil. Comparison between mineral oil and synthetic oil. So mineral oils, in case of mineral oil, break down at high temperatures, and synthetic oil can withstand elevated temperatures. हाई टेम्परेचर्स पे मिनरल ऑयल अगर यूज होगा तो उसकी ब्रेक डाउन जल्दी होगी, क्योंकि आपने देखा उसका रीज़न, उसमें जो इंटर मालिक्यूल्स हैं उनकी साइज वेरी हो रही है, चेंज है, और उसमें जो स्पेसिस है वो भी वेरी हो रही है, उसमें जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल। उसी वजह से अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जल्दी उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सिंथेटिक ऑयल्स वो सस्टेन कर सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे। मिनरल ऑयल्स आर चीप and synthetic oils are slightly expensive. Why mineral oils are cheap? Because ये देखें आप, मिनरल ऑयल्स उसकी स्टेजेस जो हैं, जो रिफाइंड मिनरल ऑयल है उसकी स्टेजेस कम है। ये देखें आप, जस्ट डिस्टिलेशन कॉलम, उसको रिफाइन किया और उसके बाद वेक्स रिमूवल, तो उसकी जो प्रोडक्शन स्टेजेस कम है, उसी वजह से वो चीप ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू synthetic oil. Why? Synthetic oil, these are further chemically modified. These are further transmitted or passed through chemical plant. Hence, their production cost is slightly expensive. Less protective or less protection. Why less protection? Because they are unstable at high temperatures, or their fluidity is low एट लो टेम्परेचर्स। लो टेम्परेचर्स पे इनकी फ्लूइडिटी बिल्कुल कम होती है, वो जल्दी नहीं पहुंच सकते, जहाँ पे फ्रिक्शन है डिफरेंट पार्ट्स पे टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल। मिनरल ऑयल को ज़्यादा टाइम लगेगा कोल्ड कंडीशंस में। कोल्ड कंडीशंस में क्या होती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उसी वजह से उसमें जो फ्लोएबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ज़्यादा विस्कोसिटी की वजह से उसमें फ्लोएबिलिटी बिल्कुल कम है, डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेट करना बिल्कुल से ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको पता है इनिशियल कंडीशंस में, स्टार्टिंग में हमेशा वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, इंजन का फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो मेन फंक्शन है लुब्रिकेंट का, उसमें फ्लोबिलिटी ज़्यादा हो, बेहतर हो,
इसकी फ्लोबिलिटी कम है, उसी वजह से इंजन प्रोटेक्शन कम है, पार्ट्स की प्रोटेक्शन कम है, मतलब जल्दी वेयर एंड टियर होगा, इसी वजह से प्रोटेक्शन बिल्कुल कम है मिनरल ऑयल की। मोर प्रोटेक्शन टू द इंजन, क्योंकि इनकी फ्लोबिलिटी बेहतर है, जल्दी वो पार्ट्स को, थोड़े टाइम में वो पार्ट्स को लुब्रिकेट करेंगे, और हेंस फ्रिक्शन वियर वो कम होगा, जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लिमिट पे होगा, मेंटेन होगा। inferior lubrication properties and hence moving parts prone to wear, उनकी जो lubricating properties हैं वो बिल्कुल कम होंगी इज कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल्स, और उसी वजह से वियर एंड टियर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एडेड lubricants that increase lubrication and make the moving parts less susceptible to wear, तो सिंथेटिक ऑयल्स उनमें ये यूज होता है जस्ट लाइक एडिटिव्स, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वियर एंड टियर कम होगी, जो मूविंग पार्ट्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन वो बेहतर होगी। विस्कोसिटी डिक्रीज विथ टेम्परेचर, ये भी हमने डिस्कस किया, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो इसकी विस्कोसिटी जल्दी चेंज होगी, इसकी जो हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स इसकी कम है, मिनरल ऑयल्स की विस्कोसिटी इंडेक्स कम है। विस्कोसिटी इंडेक्स बेसिकली क्या शो कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, तो इसकी जल्दी जैसे एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी जल्दी चेंज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सब चेंज हो जाएंगी। तो अच्छा लुब्रिकेंट वही है, गुड लुब्रिकेंट वही है जिसकी जो विस्कोसिटी हो वो चेंज ना हो, स्टेबल हो, तो स्पेशली इंजीनियर्ड टू मेंटेन विस्कोसिटी एट हायर टेम्परेचर्स। इनकी जो सिंथेटिक ऑयल्स है इनकी विस्कोसिटी बेहतर है, मतलब इनकी विस्कोसिटी इंडेक्स वो उनका जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल। तो बेसिकली विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो शो करता है stability of lubricant to maintain its viscosity under high temperatures. So requires frequent changing due to breakdown, ये भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयल चेंजिंग वो जल्दी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंथेटिक ऑयल्स। सो कास्ट सिलज आर स्केलिंग एज दी लीव डिपॉजिट्स ऑन द इंजन कंपोनेंट्स व्हेन दे ब्रेक डाउन, जैसे वो ब्रेक डाउन होगा उसमें डिफरेंट पार्ट डिफरेंट, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें जैसे लाइक वेक्सेस जैसे इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑयल का हाई टेम्परेचर पे, इसमें जो वेक्स जनरेट होगी, तो अल्टीमेटली ये वेक्स सिलज, तो ये वेक्सेस क्या है, ये बेसिकली सिलज है या स्केलिंग, जो लेयर्स प्रोड्यूस होगी, लेयर्स हो जाएंगे, जो पाइप्स हैं या फिल्टर्स हैं उनमें ये जम जाएंगे, लेयर्स हो ये क्रिएट हो जाएंगे, डिपॉजिट्स हो जाएंगे, तो इसी वजह से इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कम हो जाएगी मिनरल ऑयल यूज करने की। एंड सिंथेटिक ऑयल्स आर लेस एप्रोप्रिएट टू लिविंग डिपॉजिट्स बिहाइंड एंड हैव द एबिलिटी टू क्लीन स्लज एंड स्केलिंग। सिंथेटिक ऑयल्स में इसमें कम होगा, जो डिपॉजिट्स बिल्कुल कम होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो बिकॉज दीज आर केमिकली मॉडिफाइड, अगर उनमें ब्रेक डाउन भी होगा तो उनमें इतनी ज़्यादा वो स्लज प्रोड्यूस नहीं होगी, इतने डिपॉजिट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स causes pollution and synthetic oils are environment friendly. Why environment friendly? Because these are chemically modified and they release less environmental friendly, these are environmental friendly. Why? Because they emit less pollutants as compared to mineral oils. Less engine economy and power, क्योंकि इसमें लेस इंजन इकोनॉमी मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयल चेंजेस, एक तो वो जल्दी में वो चेंज हो रहा है, ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयल चेंजेस, और फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, इसी वजह की जो इंजन इकोनॉमी बिल्कुल कम है, और पावर, और सिंथेटिक ऑयल्स इम्प्रूव्ड इंजन इकोनॉमी एंड पावर, इसकी फ्लोएबिलिटी वो ज़्यादा है लो टेम्परेचर्स पे भी,
और इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स भी ज़्यादा है, हेंस वी कैन से improved engine economy, or engine economy is better is compared to mineral oil, and hence power. Mainly used for break in periods. Synthetic mineral oils, basically these are used in break in periods where due to its poor protection the parts are allowed to wear against each other for a more comfortable setting. Break in period क्या है? बेसिकली जो हम न्यू मतलब मशीनरी लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, तो उनकी एक ब्रेक इन पीरियड होती है, जो मैनुअल में वो लिखा होता है, रिकमेंडेड होता है कि भाई पहले आपने गाड़ी को सपोज 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर उनको आपने रन करना है कांस्टेंट लोड पे या कांस्टेंट स्पीड पे, तो ये होता है उनका ब्रेकिंग पीरियड। क्योंकि जो पार्ट्स हैं जहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट है उनमें आपस में एक फ्लुएंटली उसमें एक वो स्मूथली उसमें रनिंग हो, क्योंकि स्मूथली रनिंग हो, उसमें वियर एंड टीयर थोड़ा हो जाए और वो सेटिंग हो जाए उनकी आपस में स्मूथली रनिंग हो जाए, जैसे वो आपस में जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं रिलेटिव मूवमेंट है उनकी वो स्मूथली हो जाए, स्मूथ हो जाए, उसी वजह से ये ब्रेक इन पीरियड। तो ब्रेक इन पीरियड्स में मतलब न्यू गाड़ी लेते हैं तो ये मिनरल ऑयल्स ज़्यादा ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी ब्रेकडाउन जल्दी होती है। आपने मतलब इकोनॉमी मतलब कम पैसों पे आप इसको ब्रेक इन पीरियड में ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ब्रेक इन पीरियड्स में आपको वियर एंड टीयर थोड़ा करना है, जो पार्ट्स हैं रिलेटिव मूवमेंट है जहाँ पे स्मूथनेस के लिए। एंड सिंथेटिक ऑयल्स दीज आर यूज इन हाई परफॉर्मेंस कार्स, मतलब हाई क्वालिटी, these are high quality oils and used in high performance cars, and they are used in cold starts because of their superior cold weather starting. Cold conditions में इसकी flowability